Assalamu alaikum. Here my name is Zaid Sarfraz and here we are to talk about the sports and physical activities that are needed for our youth but are being ignored. So here we are talking with our national player Zain Adnan, who has a wide experience for playing cricket and a wide experience of winning the cricket by his physical strength and his skills. So let's talk about and ask him about his experience and ask him about what he thinks about physical activities and how it is important in our life. Assalamu alaikum Zain. How are you? Alhamdulillah, good. How are you? So, Alhamdulillah, good. So Zain, tell me about your experience. What have you been gone through and what is your stubbornness and hurdles came in your path? Alhamdulillah, experience is all good, and you know that people and all the people out there are talking about what you are doing, how you can do, and all that things are happen in your life. But you have to be mature with the questions of the people, and you have to overcome from the stupid questions of the people. You like that you are wasting your time on the cricket and something like that. But I am one of those who choose their dream as a passion, and I convert my dream into passion. And Alhamdulillah, it's almost my 6th year as working as a professional cricketer. I represent my country and my club on national. Talking about physical activities, how have you been facing about physical activities and what have your hurdles? What are your hurdles between your career path and cricket? Is there any problem that you have been facing during your cricket passion and about physical activities? Obviously, you know that in every part of life there are lots of hurdles which we can face. There are some several and some hurdles that we all are facing in our life. Is that some main thing is that the steady. First hurdle for me is the steady. Talking about physical activities, what have you faced about physical activities? That is physical strength. We say that physical strength, which is the most important thing in a youth's or player life. Without physical activity and strength, a player is unsuccessful. So tell me about the thing that how have you been training it on maintaining it to play a cricket? देखिए आपकी जिंदगी में देखिए एक पार्ट ऐसा आता है जो आपको ना सब चीज़ों को मैनेज करके चलना पड़ता है। देखिए मेरा बेसिकली मकसद लोगों को बताने का और लोगों को फिजिकल गेम्स अवेयरनेस करने का यही है कि अगर आप जो है सिर्फ ई गेमिंग की तरफ जाएंगे तो ये आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। देखिए आपने बताया आप 6 घंटे 7 घंटे ई गेमिंग कर रहे हैं, ठीक है, एज अ पीसी पे बैठ के कर रहे हैं या कंसोल पीसी पे कर रहे हैं या किसी पे भी कर रहे हैं, तो आप एज अ स्टिल बैठे हुए, ठीक है, या तो आप लेट गए, ये आपकी बैकबोन या आपके दिमाग जो है इन चीजों को इफेक्ट कर सकता है। ठीक है, आप कंटिन्यू मुझे आप देख लें, आप उठा के देख लें, बहुत सारे आप ई गेमिंग वालों को देख लें तो 6-5 घंटे बैठ के खेल रहे हैं। ऑब्वियसली बात है आपकी बैकबोन को इंजरी कर सकता है, ठीक है, आपके दिमाग पे मसला कर सकता है। दूसरी बात अगर आप मोबाइल में गेमिंग कर रहे हैं आपके आईज को सबसे ज्यादा बात है आपको इफेक्ट कर देंगे। मैं ई गेमिंग के बिल्कुल खिलाफ नहीं, बट ये कि ई गेमिंग के साथ साथ लोगों को जो है फिजिकल गेमिंग और फिजिकल एक्टिविटीज की तरफ भी आना चाहिए। क्योंकि देखिए ई गेमिंग अगर आप 3 घंटे कर रहे हो तो एटलीस्ट आप 3 घंटे पर फिजिकल एक्टिविटीज और फिजिकल गेमिंग करो। देखिए सबसे बड़ी जो हमारे पास जो मेन जो आपका फिजिकल गेमिंग का आपका एडवांटेज है ना, आपको ये होता है कि आपकी बॉडी जो फिजिकल गेमिंग में आपको पूरी बॉडी वर्किंग में होती है, ठीक है। ई गेमिंग में आप बैठे हुए हैं, सिर्फ आपके हैंड, दिमाग और आपका जो है अगर ईयरपीस आप लगाओ या माउथ, आपकी 3-4 चीजें वर्क करनी है, ठीक है। फिजिकल गेमिंग में ये होता है कि आपकी पूरी बॉडी वर्क कर रही है। फिजिकल एक्टिविटी में आप पूरी बॉडी वर्क, आप रनिंग कर रहे हो, ठीक है, आपकी पूरी बॉडी वर्क कर रही हो, आपका हर एक मसल आपका मूव कर रहा है। फिजिकल गेमिंग देखिए इतनी आजकल के इस दौर में जरूरी इसलिए है क्योंकि आप देखें हर बच्चा जो है गेम्स ई गेमिंग वगैरह कर करके मेंटल डिप्रेशन में हो गया है, किसी का सर दर्द होने लगा। अब आप देखिए फिजिकल गेमिंग में आपको ये होता है, फिजिकल एक्टिविटीज में आपका ये होता है कि आप अगर बाहर जाते हो तो एक तो आपका मूव कर रहा है। फिजिकल गेमिंग देखिए इतनी आजकल के इस दौर में जरूरी इसलिए है क्योंकि आप देखें हर बच्चा जो है गेम्स ई गेमिंग वगैरह कर करके मेंटल डिप्रेशन में हो गया है, किसी का सर दर्द होने लगा। अब आप देखिए फिजिकल गेमिंग में आपको ये होता है, फिजिकल एक्टिविटीज में आपका ये होता है कि आप अगर बाहर जाते हो तो एक तो आपका एटमॉस्फेयर अच्छा मिलता है, ठीक है, और बाहर अगर आप जाके खेलते हो कुछ भी फिजिकल गेम, तो दूसरी बड़ी बात यह है कि आपको जो है वो आपका माइंड रिलैक्स करता है, आपको जो है टेंशन से रिलीफ देता है। ये सारी चीजें जो है फिजिकल गेम में। So let me ask you that what do you think
my point is that academies are demotivating some of the youth because of their weakness or maybe the fault in physical strength. What do you think about that? That academies are playing the big role in nepotism, that they are playing the role of favoritism, that the person he is liking, that he can earn more by playing cricket. They are selecting only the person of being the fact that nepotism is there everywhere. Okay, so the academies are playing the role and selecting him only, not others that can play but through practice. As your point of view and as your question, I only said that in players or in young players development, there the big role who can play is the trainer or coach who are टीचिंग दैम व्हाट एंड देखिए आपको मैं एक बात बताऊं, सबसे बेहतरीन काम जो होता है ना वो होता है कोच का। ठीक है, अगर आप यंगस्टर देखें, आप अगर यंगस्टर हमारे पास आ रहे हैं, हमसे पूछ हम उसको ट्रेन कर रहे हैं, तो हमारी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए कि हम जो है ना उसको उनमें ही रखें जैसे हम सबको रख रहे हैं, ना तो उसको ज्यादा फेवरेट पे लेके जाएं और ना तो उसको जो है बिल्कुल अलग रखें। देखिए ऐसे ही होता है कि अगर आप जब देखें मेरा बहुत 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 पॉइंट ऑफ व्यू बहुत क्लियर है इस मामले में। मैं किसी भी बच्चे को या किसी भी अपने को मैं ट्रेन करता हूँ या कुछ मैं बताता हूँ तो मैं सबको साथ रख के ट्रेन करता हूँ। मेरा ट्रेन का लेवल बहुत अलग है, मैं शोर हंगामे या मैं डांट डपट से कुछ नहीं करता। देखिए बात होती है कि जो चीज़ आप प्यार से समझाओ ना वो ज़्यादा अच्छी समझ सकती है, और बहुत सारी चीज़ें आती हैं ऐसी लाइफ में बच्चों के जो मुझे But the fact that I mentioned nepotism was the role of Inzamam ul Haq for Imam ul Haq. Imam ul Haq was known as Perchi after he joined the cricket academy. So do you think that it was okay or it was fair to say him Perchi? देखिए मैं आपको बहुत आपने जो इशू किया मैं इसमें बहुत अच्छा आपको जवाब देना चाहूँगा कि इमाम जब आया था टीम के अंदर, ठीक है, ऑल दैट ये इंजमाम के रिलेटिव वन एंड ऑल दैट था, ठीक है, मैं उस बात से एग्री करता हूँ कि उस टाइम उसकी परफॉर्मेंस नहीं थी, लेकिन आज आप उसकी ओडीआई रैंकिंग उठा के देखें, वो बाबर आजम के बाद दूसरा प्लेयर है जो ओडीआई रैंकिंग में पाकिस्तान। And what about Sarfaraz that is being ignored in the cricket? नहीं मैं बात से बिल्कुल वो नहीं करूंगा कि सरफराज को इग्नोर किया जाए। सरफराज नो डाउट बहुत अच्छा कप्तान था, है और अभी भी। So why is he not playing in the cricket? But now he is not playing. The big reason is that कि सरफराज ने सिर्फ अपनी कैप्टनसी को सपोर्ट, अपनी कैप्टनसी पे ध्यान दिया। सरफराज अब आप देख ले, मैंने लोकल टूर्नामेंट में भी लास्ट में रमजान में लोकल टूर्नामेंट देखा, कॉर्पोरेट टूर्नामेंट नागनाबाद में हो रहा था, सरफराज की बैटिंग स्टैंड उसमें भी, ठीक है। उसके बाद you have played since for 6 years almost on the national level. So let me ask you, where do you see yourself in next 5 years and how? एग्जैक्टली देखिए मैं अभी जो है मेरा आखिरी 5 साल है। अब देखिए लाइफ ऐसी होती है कि आपकी 22 के बाद जो है आपकी लाइफ ऐसे उस पर होने लग जाती है कि आपको जो है अपना बहुत क्रिटिकल आपको होकर सोचना पड़ता है। अब मेरे आगे 5 साल जो है 5 से 10 साल जो है जाहिर सी बात है मेरी एजुकेशन मुझे अपनी कंप्लीट करनी है पहले, उसके बाद जो है मेरा कैरियर है इसमें इंशाल्लाह ये कि 2-3 चीज़ें मेरे प्रोग्राम्स हैं और वो हो जाएंगे तो अल्लाह बेहतर करेगा आगे कि मैं अपने इस पैशन को ही मैं उस काम से मैं जो है वो आगे चला सकता हूँ इंशाल्लाह। So let's end it, and I only want to say the government and I think other responsible citizens or parents or teachers, everyone, that we should motivate our youth and ask them to play physical games like cricket and other sports other than e-gaming. E-gaming is okay, but we need more physical and cricket players